Now, in electrochemistry, number one, electrolytes. These are the compounds which dissociate into their ions in an aqueous solution or molten state. The conductance offered by them is known as electrolytic conductance. And these are of two types. Number one, strong electrolytes. Number two, weak electrolytes. Strong electrolytes, the electrolytes which completely dissociate into their ions in an aqueous solution, are known as strong electrolytes. For example, strong acid HCl HNO3, strong base NaOH KOH etc. Salts NaCl KNO3, HCl जैसे HCl plus NaOH, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. So this is its salt or strong acid and strong base. Now, now here comes weak electrolytes. Weak electrolytes, the electrolytes which partially dissociate into their ions in an aqueous solution are known as weak electrolytes. For example, H2SO4, CH3COOH, phenol, etc. are weak acids. Now, weak base NH4OH, FeOH whole thrice are weak bases. Now, the one of the most important topic of this chapter, factors affecting electrolytic conductance. Nature of electrolyte. Strong electrolytes possess greater conductance due to the greater number of ions in them, and weak electrolytes possess less conductance due to the lesser number of ions in them. Number two, solvation of ions. Solvation क्या है? Solvation, it refers to the force within which the ions are held to the solvent. Greater the charge density, greater will be the solvation of ions, and hence will be the greater electrolytic conductance due to the will be the lower electrolytic conductance due to the resistance in the flow of ions. Now number three, viscosity of solvent. Viscosity, solvent of higher polarity like water. Polarity means solubility in water, and water is most likely to be soluble in water. बहुत इजी से हो जाता है, तो इसलिए वो हाई उसकी पोलैरिटी होती है. वैसे ही तो सॉल्वेंट ऑफ हायर पोलैरिटी लाइक वाटर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस एंड हेंस मोर द कंडक्टेंस इन कंपैरिजन टू द लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जिसके अंदर सॉल्यूट डाला जाता है, और उन दोनों को मिला के बनता है हमारा सॉल्यूशन. नाउ concentration of electrolyte. On decreasing the concentration of weak electrolyte, degree of ionization. The degree of ionization increases, causing greater formation of ions and hence higher conductance. Degree of ionization increases, causing the greater conductance. कैसे? क्योंकि causing greater formation of ions. ग्रेटर फॉर्मेशन ऑफ आयन होती है तो फिर हमारी हैंस हायर कंडक्टेंस होती है. नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, कॉजिंग इंक्रीज इन कंडक्टेंस. उसके अंदर कहता हूँ डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, the degree of ionization increases, causing the greater formation of ions and hence higher conductance. And in strong electrolytes, on decreasing the concentration, the interionic distance increases, causing the increase in conductance. Now the fifth point, temperature. On increasing the temperature, the flow of ions increases, hence causing greater conductance. सबसे easy था. ग्रेटर कंडक्टेंस होती है जब हम टेम्परेचर से बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस हमें बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे कंडक्टेंस कम हो जाएगी. तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ आयंस.
और हम इसको ओम्स भी लिख लेते हैं। ये वाला अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ आयंस। नाउ नंबर 2 कंडक्टेंस, इसको हम जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे साइमन भी कह सकते हैं, इसकी यूनिट होती है सही यूनिट, या ओम इनवर्स कोई वैसे हम इक्वल्स टू एस साइमन कहते हैं। नाउ जी रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1/r इक्वल्स टू कंडक्टेंस जी। और रेजिस्टिविटी होती है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर रेजिस्टेंस जितना ऑफर करते हैं उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। हमारा ये फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, और लेकिन यहाँ पे डिराइव करते हैं, यहाँ पे डिराइव की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। और हम इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू रो कहते हैं इसे, रो एल अपॉन ए। इसको हम रो का रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा होगा अभी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा एम, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ये, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये बेसिकली ये वाला जो होता है ये आयंस के लिए होता है, ये वाला हम कंपाउंड्स के लिए लेते हैं। इसकी डिफाइन लिखी है, the conductance offered by 1 mole of an electrolytic solution such that the entire solution is placed between the two electrons separated by a distance of 1 centimeter cube. क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है the conductance offered by 1 mole of an electrolytic solution such that the entire solution is placed between the two electrons by a distance of 1 centimeter. Now अब इसके मेन पे आ जाते हैं। इसके फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम। के हमारा क्या है? साइमन पर सेंटीमीटर। ये हमारा कापा होता है। हम के हमारा कापा होता है, बोलते से कापा है, लिखते के ही है बस, इसको और कुछ काम नहीं आता। ये हमें गिवन होता है कई बार। अगर ये हमें साइमन पर सेंटीमीटर में इसकी यूनिट याद करनी बहुत ज़रूरी है। यूनिट इसकी साइमन पर सेंटीमीटर है, हम तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं लैम्डा एम का। इसकी यूनिट अगर साइमन पर मीटर है तो हम इसकी ये यूनिट यूज़ करते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मैंने बहुत क्लियर किया हुआ इसमें। नाउ इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला के इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। जी भी मैंने बताया था 1/r को कहते हैं, और जी स्टार होता है हमारा इक्वल्स टू एल अपॉन ए। एल हमारी लेंथ होती है और ए हमारे पास है एरिया। बस हमें वैसे तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है। ए इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जी को हमने 1/r लिख दिया, जी स्टार को L/A लिख दिया, और फिर हम इसको एक साथ लिख दें L अपॉन ए इंटू आर। तो ये हमारा क्या है? कापा के। मैंने ऊपर बताया भी था आपको ये। नाउ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी के विद कंसंट्रेशन। कि हमारा जो कापा होता है ये हम कंडक्टिविटी के लिए शो करते हैं, तो ना कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि हम इसको डिनोट करते हैं के से, और के जो हमारी यूनिट है हम उसको कापा कहते हैं। होता है वो डिनोशन कंडक्टिविटी के लिए, ऊपर जो बताया था। और इसका हमारे ये रिलेशन बनता है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस इन सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम 1 ml कह सकते हैं। हम इसको इंक्रीज़ करेंगे इसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में, तो उसके नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो उनकी भी यूनिट इंक्रीज़ होती है। कॉज क्या करता है कि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है कापा, वो इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे ही हम अगर कम करेंगे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो उसका कापा कम हो जाएगा। इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है कंसंट्रेशन के साथ। ये लिखा भी है कि कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन
और एक और होता है लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ आयंस इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हमने डिफाइन से लिया हुआ भी है, डिफाइन कर लेंगे याद। ये हमें एक इसका ग्राफ भी दिया हुआ होता है कि ये हमारा ऐसा होता है, अच्छे से ना वैसे बना हुआ भी है, देख सकते हैं हम। ये हमारा इस साइड में ये हमारा लैम्डा एम है, ये वाली साइड हमारी कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर हम ये इस पॉइंट से टच होके ऐसे आती है लाइन, थोड़ी सी बेंड होके वो KCl मतलब एसिडिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये एक ऐसी बेंड होके जाती, टच नहीं करती, ये भी फिर स्ट्रेट चली जाती है, ये हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग। नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। ये हमारी उससे जो ऊपर हमने पॉइंट्स याद किए थे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था उसमें से ही है कि ऐसे ये हमारा फॉर्मूला जो है लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। 1/√c होता है, ये ड्राइव्ड फार्मूलाज होते हैं, हमें याद करने की खाली फार्मूला की जरूरत है। तो ये जो मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको पढ़ना है बस। तो क्या है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट the molar conductivity increases with decrease in concentration. Molar conductivity increases with decrease in concentration due to the increase in the degree of dissociation. Due to the increase in the degree of dissociation, producing greater number of ions and hence greater the flow of ions flowing from one electrolyte. वैसे in case of strong electrolyte, on decreasing the concentration causes an increase in the intermolecular spacing, resulting free flow of ions and molar conductivity to increase. चलो अगले पे, मैंने इसके अंदर आपके लिए वो भी रखे हैं न्यूमेरिकल्स, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नो कोलरॉश लॉ या फिर कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, हम इसे कोलरॉश लॉ भी कहते हैं और हम इसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ऑफ कोलरॉश लॉ भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ the limiting molar conductivity of an electrolyte is expressed as the sum of contribution of anion cation of an electrolyte। जैसे एग्जांपल है हम लिख सकते हैं पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लाया हूँ मैं इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। दी वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस इज दिस। ये यूनिट होती है हमारी लैम्डा एम की, लैम्डा एम की यूनिट होती है जब हमारा कापा साइमन पर सेंटीमीटर में होता है कापा, तो हमारी लैम्डा एम की यूनिट होती है लैम्डा एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हमारा कापा होता है मीटर इनवर्स में, साइमन पर मीटर इनवर्स, तो लैम्डा एम की हमारी यूनिट्स होती हैं लैम्डा एम की यूनिट्स होती हैं साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स का मतलब वो डिवाइड में होता है मोल, हम उसको इन शॉर्ट ये भी लिख देते हैं 7 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको आगे समझते हैं। न्यूमेरिकल में हमें Al2SO4 होल थ्राइस की हमें लैम्डा एम दे दिया है, और इसने लैम्डा नॉट एम इसका भी दे दिया, लैम्डा नॉट एम है वैसे ही उसने मेंशन किया ऊपर, और हमें इसकी लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमने इसके फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था उसकी हमने डिफाइन पढ़ा कर, वैसे डिफाइन में जो लिखा है वही हमने फॉर्मूला में बिठा दें। तो लैम्डा नॉट एम क्या आ जाएगा हमारा कि हमें ये कैसे बनाएंगे, Al3 प्लस SO4 2 माइनस ये 3 प्लस कितने टाइम्स है 2, तो हमने ये 2 टाइम्स लिख दिया। ये 2 नेगेटिव कितने टाइम्स है 3, हम ऐसे लिखते हैं ना,
Al2SO4 होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं Al 2 times of Al 3 positive plus 3 times of SO4 2 नेगेटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने उसी को ब्रेक किया और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके हिसाब से क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ये 2x हो गए और ये 3 इंटू 160 जो हमें गिवन है, और फिर हमने ये भी हमने लिख लिया। तो इसको इक्वेट किया यहाँ पे, x की वैल्यू होगी 189, तो हमारी आंसर हो गया। नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वही लैम्डा नॉट एम at infinite dilution the molar conductivity of an electrolyte attains its maximum value, which is known as limiting molar conductivity, and it is expressed as mathematically this: lambda m equals to lambda naught m minus a root c। जहाँ पे हमारा जो a होता है, ये वाला ये a होता है constant whose value depends upon the nature of solvent, एंड सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट सी के, 1/√c के, और कापा हमारा कॉन्सेंट्रेशन के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने वही यहाँ पे पॉइंट्स लिख देना है, उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है। बस हमारे पास ये टोटल भी था फॉर्मूला है इन दोनों के, ये भी आ गया। उसके बाद अब उसमें न्यूमेरिकल करते हैं। क्या न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में? The resistivity of 0.8 molar solution is this G ohm centimeter. Calculate is molar conductivity। तो हमें लैम्डा एम मालूम करना है, तो हमें गिवन हम लिख लेंगे पहले। रेजिस्टिविटी हमारे पास दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, लैम्डा एम हमें ढूंढना है, ये हमें दिया ना, कैलकुलेट से मोलर कंडक्टिविटी। तो हम इसका फॉर्मूला हमें पता है, K इक्वल्स टू 1/ρ, ये रो है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी कापा, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी, रेजिस्टिविटी इसने गिवन कर रखी है, ये इतने मोलर सॉल्यूशन है तो मोल्स लिखे हैं ये, इसकी वैल्यू लेकिन ये है, तो वैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये है कि साइमन पर सेंटीमीटर, हमारी क्या वैल्यू, इसकी यूनिट्स क्या थी, पर ओम पर सेंटीमीटर और साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन हमारा होता है 1/ओम, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, सेंटीमीटर में जो था उसका वैल्यू पुट की, फिर हमने ये सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसकी यूनिट्स लगा दी लैम्डा एम की, जब हमने याद किया। नेक्स्ट ऐसे इस पे एक और है, हमें इसके अंदर की बार रेजिस्टिविटी भी फाइंड करनी है, मोलर कंडक्टिविटी एंड कापा, ये तीनों फाइंड करने हैं। तुम लिख के पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ दिस मोलर कंडक्टिविटी, यानी हमें एम दे दिया इसने, एंड कास्टिक सोडा की ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस जो हमारा L/A था ना जी स्टार, उसमें काम आएगी, तो हमने रेडियस लिख लिया। लेंथ इसने आगे दे दी 50 सेंटीमीटर, तो हम 50 सेंटीमीटर लिख लिया। और उसका ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये ऊपर लिखा हुआ है इसने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। तो फिर हम ये लिख लिया, उसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करना है। जैसे ए पार्ट में हमने क्या किया, एरिया, हमने एरिया यानी ए निकाल रहे हैं, स्मॉल ए, तो हमारा वो आ गया। हमें इस कॉलम को तो एरिया पता है ना कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने ये रो लिखा, वही फॉर्मूला लगाया, कापा का फॉर्मूला लगाया 1/ρ,
ऐसे करके हमारे आंसर आ गया। इतना मुश्किल नहीं है ये। अब ये वाला आपका होमवर्क है, मैं इसको समझा देता हूँ आंसर को, क्वेश्चन पढ़ लेना। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता काफ़ी है वो कंसेप्चुअल में। रो हमें इसने दे दिया है इतना, इसका मोलर मास कितना है, कापा दे दिया है, और हमारा इतना है, मोलर मास इतना, कापा क्या होगा। ये है KCl के लिए, ये हमें दिया है AgNO3 के लिए। हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, जो जी स्टार होता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट होता है, G इंटू जी स्टार। जी स्टार होता है हमारा L/A, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। लेंथ हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरिया कांस्टेंट होता है किसी भी कॉलम का, लेंथ भी कांस्टेंट होती है, इसलिए जी स्टार भी कांस्टेंट है। तो बस हम इसके फॉर्मूला बैठाएंगे, हमें जी स्टार की वैल्यू नहीं दी है तो हम जी स्टार लिख लेंगे, तो हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। वैसे ही हमने KCl से बनाया था, अब हम उसके बाद AgNO3 से बना दिया हमने। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, वो लिखा भी है। उसके बाद इक्वेट किया तो हमारा जी स्टार कट हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास K1, तो ये K2 नीचे वाला, ये हमारा ऐसे आ गया K2/K1, तो वैसे दिस अपॉन दिस, ये हमारा ये आ गया, और जी स्टार कट गया तो 1 आ गया उसके बदलेगा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसको यूनिट्स लिख दी। अब हम लिखेंगे लैम्डा m AgNO3 का। लैम्डा m बेसिकली आइए AgNO3 का है, तो ऐसे लिखा है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमें जो मिली थी कापा की वैल्यू, वो इसमें पुट कर दी, K2 जो हम कह रहे थे। हमने इसको ये आंसर आ गया। हाँ, यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लिखी है, यूनिट्स लिख लिया ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, के बहुत मैं शॉर्ट्स नोट अच्छे से बनाए, इनको भी एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है इसके, ऑक्सीडेशन कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इस चैप्टर से रिलेट करके बनाया। occurs at एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा खाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वर्क करता है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन occurs at एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल क्या है इसके, जैसे Fe हमारा ब्रेक करता है Fe2+2-, ये मैं बताऊंगा कैसे ब्रेक करता है। Fe हमारा कई बार Fe3+3 इलेक्ट्रॉन में भी ब्रेक करता है, लेकिन अभी बताऊंगा मैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट रखा है अलग से, ये दिख ही रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, आगे बताएंगे। इसी रिडक्शन में याद कर लो, occurs at कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा रिएक्शन से, प्रोडक्ट साइड में बनेगा, तो हमारा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखो ये मैंने उल्टा लिख दिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Al3++3 इलेक्ट्रॉन, स्टोशियोमेट्री करेक्ट करने के लिए हम 3 लगाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसमें से, और ये ये असल में ऐसे होता है, Al प्लस सॉरी ये नहीं, Al-3 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Al3+, हम फिर इसको इक्वेट करके ऐसे लिख देते हैं, Al gives Al3++3 इलेक्ट्रॉन। इक्वेट क्या होता है, ये याद करने होते हैं, इजीली याद हो जाते हैं, बस टेबल में मैं याद करने का फॉर्मूला बताऊंगा आपको। तो हमारा अब ये क्वेश्चन है, अ सेल इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन दिस एंड दिस, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, और बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हम एनोड की रिएक्शन लेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, एनोड में हमारा कंपाउंड टूटता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रोडक्ट में, कैथोड में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है,
और प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा आता है रिएक्टेंट साइड में, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है प्रोडक्ट साइड। बस इतना याद रखो, जो जो बताया मतलब वो ऊपर का वो याद करो। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे पहले, तो इनके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इक्वल करते हैं जब भी हम इक्वेट करते हैं इनको। उसके बाद नॉर्मल एडिशन जो होता है ना, एडिशन वो करते हैं ना, ये हमारी होती है ओवरऑल रिएक्शन, ये लिख देना इसके आगे, प्रोडक्ट के आगे। फिर हमारा जो इसने पूछा है जितने इलेक्ट्रॉन्स ये हमने स्टोइचियोमेट्री दोनों की इक्वल करके बनाया ना, ये आंसर होता है बस, कितने ट्रांसफर हो गए। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर ये है सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट ब्रिज, अभी आएगा आगे, देखना ध्यान से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और क्या कहते हैं, वोल्टेइक सेल, सब कुछ लाया हुआ इसमें। तो हमारी ये जो है फिगर, ये अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करने की है। इसके अंदर हमने 2 बीकर लिए हैं, उनके अंदर एक के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, एक के अंदर जिंक सल्फेट डाल दिया, उनके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। एक हमारा एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, एक एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो हमने लिए ये इलेक्ट्रोड कॉपर की है, और ये वाली हमारी जिंक की है, लिखा ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। हमने जब जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डाला तो हमारा इसने रिएक्ट किया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थ्रू हमने जो कनेक्ट किया हुआ है सर्किट, ये भी सर्किट कहलाता है एक। तो हमने की है ये ऑन ऑफ स्विच होता है ना हमारे घर पे, ऑन ऑफ स्विच, जो छोड़ो मैं क्या बनाऊंगा, ऑन ऑफ स्विच तो सबको पता ही होगा, सबने पढ़ा आगे। वैसे ही ऑन ऑफ स्विच है, एक वोल्ट मीटर भी सबने पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर 10th की क्लास की चीज़ें ये, अभी 12th में पढ़ी होंगे अपने दोबारा से फिजिक्स में। तो वही फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इससे रिएक्ट करेगा, ये वाला है, ये रिएक्ट करेगा, तो हमारे करंट टाइप से निकलता है यहाँ से। हमारे यहाँ पे हमने एक चीज़ लगा दी, जिंक एमेल्गम क्या होता है ये, तो और भी चीज़ों का होता है, यू शेप्ड होता है सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ से ना हमारा ऐसे 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 जाता है, और ये हमारा करंट जाता है यहाँ से, हमने उसका नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्यों, अभी मैंने डिफाइन लिखी हुई है, उससे हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा कन्वेंशनल करंट है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जो हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशनल करंट जो जा रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये लिखा नहीं जा रहा, चलो ठीक है, समझ आ गया ना। और इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास ये हमारे पास केमिकल एनर्जी है, जो इसको डिप करने से है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक तो ऐसा आता है हमेशा कि सॉलिड ब्रिज को एक्सप्लेन करो, एक आता है इसके क्या है ये, इसके टाइप्स लिखो, फंक्शन लिखो मतलब। तो वही सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब which is made up of semi-solid structure like KCl, KNO3, NH4Cl, और भी होते हैं, मिक्सड विद अगर अगर और जेलाटिन, अगर अगर जेलाटिन से मिक्स कर दिए। इट हैज़ इट्स टू फंक्शन, बस टू ही फंक्शन है इसके, कि एक है कंप्लीट द सर्किट बाय अलाइन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया था, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन जो उसके फ्लो हो रहे थे। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द ट्यूब सॉल्यूशन, ट्यूब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी जो करंट फ्लो कर पा रहा था, अच्छे से फ्लो कर पा रहा था ना एक डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन मेंटेन हो पा रही थी हमारी इसी सॉल्ट ब्रिज की वजह से। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज था तभी फ्लो हो रहा था ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होते, एक टाइम के बाद वो भी स्टॉप हो जाता करंट, क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो करंट भी नहीं फ्लो करता, सॉल्ट ब्रिज है तभी तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है ना। और फिर ये दोबारा ट्रिगर कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोबारा इधर से इधर जा रहे हैं।
इतना समझने का नहीं है, बस ऊपरी ऊपरी समझ लो, याद करने की चीज़ें बस। इसकी डिफाइन, उसके फंक्शन याद कर लेना। एक एग्जांपल भी इसका याद कर लो, मैंने लिख दिया, ये भी है इम्पोर्टेंट, समझ आ जाएगा इससे। ऐसे हमने रिएक्शन लिखी एक जिंक 2+2 Cl- जो हमने ऊपर लिया था, उससे हमारा ये बना इलेक्ट्रिसिटी में उससे, और ये बनता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। कौन से आल्टवेज लिखी थी कन्वेंशनल करंट से जो बन जाता है उसकी मदद से। तो ये रिएक्शन होती है, पढ़ लेना ऊपर, ज़्यादा समझा नहीं रहा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना। ये पेपर वर्क था, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम पहले एनोड लिखते हैं, उसके बाद डबल डैश देते हैं ये वाले, फिर कैथोड लिखते हैं। जैसे एनोड पे हमारे पास ये जिंक था, और कैथोड पे हमारा कॉपर दिया हुआ था। सॉलिड ब्रिज था ना हमारे पास, ऐसी था। मेरे पे रेजर नहीं है इसमें, ऊपर दिखाई देता हूँ। जैसे ये हमने कॉपर लिया था, यहाँ पे जिंक लिया था। तो जिंक की हमारी रिएक्शन क्या है, एनोड पे है, कॉपर की कैथोड पे है। वैसे ही वही एग्जांपल ले लिया मैंने सॉल्ट ब्रिज का, इसको भी लिख सकते हैं, ये अलग टॉपिक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, तो हमने एक इसको ले लिया, इसके सामने ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सामने, ये हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, क्वेश्चन लिया था ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। बस एक एग्जांपल ले लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही होती है, मतलब जैसे जो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है, कंसंट्रेशन क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये 1 मोलर है, तो हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे क्वेश्चन है, प्रीशियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is constructed from a silver and gold, where silver constitute anode और gold constitute cathode। रिप्रेजेंट करना है हमें इसका सेल, रिप्रेजेंट दी सेल। तो हमें ये नहीं फिगर बनाएंगे, नहीं, हम इसको ऐसे लिखें। तभी मैंने ये आपको बताया था एग्जाम्पल। तो बस हमने इसका एनोड पे रिएक्शन लिखी, कैथोड पे रिएक्शन लिखी, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ, एनोड पे यहाँ, उनकी स्टोशियोमेट्री लिख दी इसके हिसाब से रिएक्शन के। उसके बाद इन्हें इक्वेट करके ये रिएक्शन लिख दी, ओवरऑल रिएक्शन है ये, मैंने लिख दिया कि अब तो समझ आएगी होगा। बेसिकली हमें ये बताना था, सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। जैसे हमने एक सिंगल बार लगाया, हमारे पे ये और ये कितना होता है, हम स्टैंडर्ड लेते हैं 1 मोल, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 मोल, ये लगाया ये, बस। इसके अंदर पहले हम लिखते हैं यहाँ वाला रिएक्टेंट वाला, उसके बाद प्रोडक्ट वाला, इसके अंदर पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट। वैसे हम रिएक्शन ही उल्टी करके लिखते हैं, तो ये भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्ट यही कर रहा है ना, ठीक है। मतलब प्योर सब्सटेंस यहाँ आता है, इसके इधर इधर, और जो निकल जाते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन ही आ जाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं दोनों, स्टैंडर्ड वैल्यूज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। अभी आ गया है। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एम एम एन पॉजिटिव, यहाँ पे एन एन पॉजिटिव और एम, जैसे यहाँ पे किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, ई लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई। ये करने के बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, इसे याद कर लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार।
1 बार 1.01 ATM के बराबर होता है। हम 1 बार लिखते हैं इसे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज 1 मोलर रेफर टू एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखा था ना हमने यहाँ पे 1 मोलर, ये स्टैंडर्ड के लिए आया था। एग्जाम्पल लिख दिया है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर अ गिवन एलिमेंट पोजेस सम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइंस। हमारे साइन इसके अंदर अपोजिट हो जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे ही। ये रहा, मैं इस टेबल की बात कर रहा था, आप इसको याद कर लो कि लिथियम पोटेशियम ऐसे आता है, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम ऐसे में। पहले पढ़ो लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, तो इसका दोबारा पढ़ो सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम वाटर, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। ये मेरे को ऐसे इजीली लर्न होते हैं, ये तो आप ऐसे लर्न कर लो। बस इतना लर्न करो, ये पूरी टेबल मत लर्न करो, ये बस इतना याद कर लो इजी वे में। लिथियम का -3.40 होता है वोल्ट, और उसकी ये सारी नेगेटिव वैल्यू चलती है टेल हाइड्रोजन क्योंकि 0 हो जाती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाती है ये सारी वैल्यू। ये आ जाती है 2.866 जो होती है मेरे पास फ्लोरीन की। एक इसकी ये डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। EMF को हम फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, डिफाइन में लिखनी इंप्रेसिव हो जाती है। It is the potential difference across two terminals of the cell when either no current or very little current is drawn through the cell. Unit is volt. Mathematically, E cell equals to E cathode, E anode. E not cell, any standard condition, cell equals to E cathode minus E anode. सेम होता है दोनों में, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में फॉर्मूला, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, गिवन ही होती है, हमें गिवन होती है सारी वैल्यू, स्टैंडर्ड वाली फिक्स्ड होती है और गिवन होती है। ये हमारी वेरी करती है, तो हमें ये निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ये जो डिफाइन है आपने एक फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, इसकी डिफाइन है, दोनों में से कोई भी लिख लो, ये डिफाइन सबसे बेस्ट डिफाइन है, दोनों में चल जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। EMF की पढ़ा होगा आपने सेकेंड थर्ड में चैप्टर के। दी ई सेल कैन बी ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद कर लेना, नोट पॉइंट से, नोट बना के लिख सकते हो अगर सेल्फ नोट बना रहे हो तो। ई सेल कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव। ई नोट सेल कांट भी ज़ीरो नेगेटिव, ज़ीरो नेगेटिव नहीं होता ई नोट सेल, और ये फिक्स्ड भी होता है। वैसे इतना कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस एक बार पढ़ लो। E cell is 0 or negative E naught cell, then the electrochemical cell can't be possible. ये ऐसे हो तो हम इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और हम इसको क्या लिख सकते, क्या होगा हमारे ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख सकते हैं नॉट फीजिबल। ये मैं क्वेश्चन में आता कई बार, तो हम इसको ऐसे में अगर फिजिबल लिखते हो तो हम इसको नॉट फिजिबल कर देंगे, अगर नेगेटिव 0 आए तो, अगर पॉसिबल ना कहे तो नॉट पॉसिबल, एक ही मीनिंग होगा दोनों। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ई सेल हम फॉर्मूला बिठाएंगे, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, ये हमारा ना आंसर हमेशा ई नॉट सेल का पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा, क्योंकि हम जो कैथोड डालते हैं उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। आप सोच रहे होगे कुछ लोग कि ऐसे क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, इसकी हमेशा नेगेटिव होती है, नोट पे तो नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, उसको नेगेटिव हम माइनस करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा ई नॉट सेल आ जाता है, ई सेल आ जाता है, तो हम उसी को हम इसकी वैल्यू माइनस में पुट की, ये पॉजिटिव, तो हमारा इवेंचुअली पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 भी आएगा हमेशा, इसलिए ई नॉट सेल हमारा कभी नेगेटिव और नहीं होता है, नॉट पॉसिबल नॉट फिजिबल। SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
इसका हमें एक डायग्राम याद करना है और याद करना है कि ये कभी ज़ीरो नहीं होता। एनोड की रिएक्शन इसकी लर्न कर लो, कैथोड की कर लो बस। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन तो वही है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल ई सेल, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इसमें काम आती है नर्स्ट इक्वेशन हमारी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एल एन इक्वल्स टू 2.303 लॉग, ये याद रखना है, काम आता। हमारे फॉर्मूला था, हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा होगा ई एम एन पॉजिटिव और एम रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 लॉग एम अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये वाला एम अपॉन एम एन पॉजिटिव इंटू ये हमारा कांस्टेंट होता है आर की वैल्यू हमारी हमेशा होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये लिखा भी यहाँ पे। टेम्परेचर हमारा नहीं होता गिवन तो हम ये लेते हैं, नहीं तो फिर जो उसने दिया होता है वो पुट करते हैं यहाँ पे, लेकिन आर हमेशा हमारा फिक्स्ड होता है, इसकी यूनिट्स देख लेना हमेशा। और 1 फैराडे, हमारा 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो बहुत पॉइंट्स में आती है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स ही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में जब करते हैं। हमारी इक्वेशन होती है दिस, हमने इसका लॉग था उसको सॉल्व किया ना, उसको ऐसे आ जाती है इक्वेशन। हम ये भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू डाली हमने आर की, और टी भी स्टैंडर्ड में हमने ले लिया, मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इसको लर्न करने की ज़रूरत है, ये यूज़ होता है। आग बंद करके जो अगर ये लग रहा है तो ये लगा देना, उसकी कोई ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड वाला, ये नॉन स्टैंडर्ड मैंने बताया था गिवन होता है ये, तो उससे हमें कैलकुलेट ये करना होता है, तो हमने वही गिवन लिखा, फिर हमारा ये जो फॉर्मूला वो बिठाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे, जो हमने लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब या फिर ये लिखा हो एनोड पे जो रिएक्शन होती है, कैथोड की जो रिएक्शन होती है, उनसे जो हमारा रिलेट करके जो इक्वेशन आती है ओवरऑल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कट हो गए होते हैं दोनों साइड में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे हमारा 6 आया था पहले 6 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन के अंदर, वैसे यहाँ पे 2 आया होगा, तो हमने 2 इसमें अंदर पुट कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड मैंने लिख दिया, इसको पढ़ लोगे अब नोट्स बनाओगे तो रिकॉल करने के लिए अच्छा है। हमने फिर इसके अंदर वैल्यू पुट की, लॉग 1/1.0 कितना हुआ 10/1, तो लॉग 10 क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया 1, तो इसमें इसको माइनस करेंगे ये आ गया, एक है वोल्ट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स की हम हमेशा 1 लेते हैं, अगर गिवन नहीं होता हमें कई बार तो हम उनके क्वेश्चन में तो गिवन लेके चलते हैं।
जो प्योर मेटल्स में बताए थे वही। वैसे ये हम कैसे लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन? स्टेप 1, रिडक्शन इक्वेशन, एग्जांपल्स का। एन अगर हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 3 है यहाँ पे दिख रहा है हमें। इक्वेशन में डाला, एन की जगह हम 3 लिख देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के ट्राई करना। आंसर देख लो कैसे लिखते हैं, देख लो। रिएक्शन लिखनी है, उसके इसका पॉइंट्स होते हैं इसके, और फिर जो फाइनल आंसर तो उसके यूनिट्स लिखनी है, मैं देख लेना, वोल्ट होती है। एक क्वेश्चन और, ये भी होमवर्क है। इसके अंदर वही हमें लेट करना है एक तो, और ये हाइड्रोजन का 1 होता है और उसमें 0 होता है। मैंने आपको टेबल दिखाई थी, H का 0 होता है। फिर हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाकी ये तो इतना नहीं है, इसकी रिएक्शन देख लो, हमने फिर उसको कैसे ड्राइव किया। ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, बस ये देख लो। एंटीलॉग आता है हमारा कि इक्वल्स टू एंटीलॉग दिस। किसी का भी एंटीलॉग जो होता है ना, हमने इसको एक्स अगर लेट किया तो उसको 10 की पावर एक्स आ जाता है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज flowing through the cell multiplied by EMF of the cell। यानी वन ये कूलम में होता है चार्ज, वोल्ट में होता है तो जूल में आ गया। वर्क डन इक्वल्स NF ई सेल, एक फॉर्मूला है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे बताया था अप्रॉक्स वैल्यू। ये हमने उसको डिराइव किया है, ये खुद के लिए देख लेना। ये वैसे फॉर्मूला है। वैसे हमारा वर्क डन को हम ये भी कहते हैं माइनस डेल्टा जी, तो हम उसको रिलेट करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल्स माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिकल, तो उससे हमने फॉर्मूला रिलेट किया। इसकी भी यूनिट्स वैसे जूल ही होती हैं, क्योंकि बस इसमें साइन का अंतर होता है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड पे ये फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल, देख लेना ध्यान से। मैक्सिमम यानी स्टैंडर्ड कंडीशन। सेल्स एंड बैटरी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये इसकी डिफाइन है, बैटरी कंपोज्ड ऑफ 2 or more इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन सीरीज। ऐसे ये तो सीरीज, ये होता है पैरेलल। तो हमारा सीरीज में कनेक्ट होती है बैटरीज, ऐसे बैटरी। चलो, जिसके कुछ पॉइंट्स 3, it should be compact and lightweight, the voltage produced should not vary significantly, it must supply energy for a long period of time। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है, हाउ बस्टिंग लेक्टिन सेल बी प्रिवेंटेड। लेक्टिन की सेल क्या होता है, ड्राई सेल होता है। ये प्राइमरी सेल के पार्ट्स होते हैं, एक ड्राई सेल और एक मर्क्यूरी सेल। जैसे मर्क्यूरी सेल, ये दो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी सेल के।
एक हमारे पास प्राइमरी सेल होता है और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। चलो अभी प्राइमरी सेल करें। ये दोनों सेल्स होते हैं हमारे सेल और बैटरी के टोटल पार्ट्स। प्राइमरी सेल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल्स। ओके, ड्राई सेल प्राइमरी सेल का पार्ट है, इसको हम लेक्लाइंचे सेल भी कहते हैं। ये सब पढ़ लेना। एक ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है हमारे इसके अंदर। ये रिएक्शंस, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा था मैंने, ये वाला। वो साइड से नॉइस आ रही होंगी, आज इग्नोर कर देना प्लीज़। और ये उसका आंसर, एक और क्वेश्चन उसको और हम कह सकते हैं ना, वो लिखो क्वेश्चन क्या है, दोनों में आंसर सेम चलेगा। NH4Cl is a salt of strong acid and weak base which corrodes the zinc container due to acidic nature of ammonium chloride. Hence cell decomposes unused। और फिर रिएक्शन लिख देना, वोल्टेज फॉर्मेशन कितनी होती है, बस। ये हमारे फ्लक्ट कर जाती है तो हमारा हम कहते हैं डिकम्पोज हो गई सेल। अब इसको दूसरा पार्ट है मर्क्यूरी सेल। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, बस ये, बस इतना पोर्शन पढ़ना। एट एनोड रिएक्शन, एट कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, बस। और एक ये पढ़ लेना, सिंस no extra ions exist in the overall equation, hence mercury cell provides uniform voltage। और इतना, बस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे सेकेंडरी सेल्स, जो हमने बताया था ये रिचार्जेबल सेल्स होते हैं ऐसे, और ड्राई सेल नॉन रिचार्जेबल होते हैं। हमें लेकिन इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ड्राई सेल में तो एक ही इक्वेशन होती है, जैसे एनोड पे जो कंपाउंड है वो एनोड पे है ये, और ये कैथोड पे, ये याद करना पड़ता है। याद तो ऐसा भी करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें एक तो डायग्राम बनाना है ये, उसके बाद जैसे रिएक्शन दिया मैं डिस्चार्जिंग की हमने लिखी है, क्यों, क्योंकि जैसे ड्राई सेल में डिस्चार्जिंग हमने पढ़ी थी, इसके अंदर डिस्चार्जिंग ऐसे। लेकिन जब हमारे पास एक क्वेश्चन इससे और आता है चार्जिंग पे इक्वेशन, यहाँ पे नहीं लिखी मैंने, चार्जिंग पे इक्वेशन आती है। चार्जिंग पे बस हमें सिंपली क्या करना होता है, एट कैथोड पे जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये हमें लिखनी होती है एट, एनोड पे जो लिखी है एट कैथोड में लिखनी होती है, एंड एट कैथोड पे जो इक्वेशन लिखी है वो हम लिखते हैं एनोड पे। ये हमारे कंप्लीट नोट्स हैं, अब इसको पढ़ लोगे, उस और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, कोई शॉर्ट नोट्स की नहीं, किसी की नहीं, यही बस ये एक बार पढ़ लेना। वही मैंने लिख दी है, रिचार्जिंग भी, वैसे रिचार्जिंग कह लो चार्जिंग कह लो, बस उसकी उल्टी है डिस्चार्ज। इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है निकल कैडियम सेल, निकैड भी कह देते हैं, निकैड शॉर्ट फॉर्म और ये फुल फॉर्म। बस इसके अंदर इतना याद करना है, एक इक्वेशन याद कर लो, ऐसे चार्जिंग याद कर लो, डिस्चार्जिंग, और उसके बाद दूसरी दूसरी उल्टी होती है, बस ऐसे याद कर लेना। बस इन्हीं को तो इंटरचेंज करना है, एथोड वाले वर्ड पर इसको, चीज़ तो वही रहेगी, ओवरऑल रिएक्शन भी सेम आएगी।
इनमें क्या होता है, वैसे मैकेनिज्म समझा दूँ। जो इसमें हमारे जो सेकेंडरी सेल होते हैं ना, उसके अंदर पहले तो डिस्चार्ज होते हैं वो, ये सारे सेल नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं कुछ टाइम के बाद। उस तो क्या होता है, हमारा सेल वो बेकार हो जाता है। तो हम इसके अंदर क्या फीचर होता है कि हम उसको दोबारा से चार्ज कर पाते हैं। चार्जिंग सेल होते हैं ना महंगे, वैसे ही हम तो उसे चार्ज कर लेते हैं। तो वही जो इसमें रिएक्शन यहाँ से यहाँ गई होती है, इन इन दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ गई होती है, वही दोबारा अप हो जाती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है। जो हमारा ये प्रोडक्ट बना था, ये वाला और ये वाला, वही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट हमारा अगर रिएक्टेंट आ गया और रिएक्टेंट उसने दे दिया, फिर हमें, फिर रिएक्टेंट आया, उसने फिर हमें प्रोडक्ट दे दिया, तो चलती रहती हैं। लेकिन ड्राई सेल में क्या होता है, रिएक्टेंट आता है तो प्रोडक्ट बनता है, और वो दोबारा ही नहीं बन पाता। ठीक है, बस इतने ही मैकेनिज्म है। बाकी इनकी बस ये एक डायग्राम ये, और ये इनकी रिएक्शन, सॉरी दिस, ये ओवरऑल रिएक्शन है। थोड़ा ख़राब लिखा है, देख लेना। ये सब लिखा है H2, यहाँ पे लिख के रहा है H2 + 2OH माइनस गिव्स 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी क्या है, एनोड की इक्वेशन। एट एट कैथोड, कैथोड पे हमारी रिएक्शन है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव, बस। और उसको फिर हमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इक्वल करना है, तो इंटू 2 कर दिया इस इक्वेशन को हमने एनोड की। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है H2, 2H2 + O2 गिव्स H2O। ओवरऑल रिएक्शन ये आती है, तो इसलिए इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। इस पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत, मैंने लिखा है ये एडवांटेजेस इसके। फ्यूल सेल की यूज़ करते हैं हम। फ्यूल सेल फिर बता दूं, सेकेंडरी सेल का पार्ट है। सेकेंडरी सेल के 3 पार्ट है, मैंने बताया था। एक फ्यूल सेल है, एक हमारा लेड स्टोरेज बैटरी था, एक हमारा निकैड था, यानी निकल कैड। लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सिंपल गैसेस मिलती हैं, उससे हमें पानी बन जाता है, तो ये हमारी इको फ्रेंडली होता है एक तो वही इसके पॉइंट से मैंने लिखा है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। तो प्रोडक्ट फॉर्म इज वाटर, इको फ्रेंडली हो गया। कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार H2O बनता है, H2 पानी बन जाता है, पानी से फिर वहाँ हाइड्रोजन और वाटर बन जाता है, फिर उससे पानी बन जाता है। तो ये भी हमारी चलती रहती साइकिल। तो ये हमारी रिवर्सिबल होती है, यानी ये सेकेंडरी सेल का है। बस ये, और एक ये हमने लिखा थर्मोडाइनमिक, हाई थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी होती है इसमें 70 to 75% कंपेरिजन टू कन्वेंशनल सेल डेट ऑफर्स दिस। कन्वेंशनल सेल कौन से होते हैं हमारे, ड्राई सेल, ड्राई सेल ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल। वैसे 3 है। The slow phenomena of conversion of a metal into certain undesirable products, especially oxides, when metal comes in contact with atmosphere, is known as corrosion of metals. For example, rusting of iron, blackening of silver, rusting of iron, blackening of silver, formation of green color coating और copper। ये थ्योरी है, इसको लर्न कर लेना। मैंने मार्क कर दी है इसमें इम्पोर्टेंट लाइंस। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वाली चीज़ आती है, 3 नंबर का कुछ नहीं से आते हैं,
3 से 4 नंबर का आ जाता है कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। एक मेथड होता है बैरियर प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम पेंटिंग या फिर ग्रीसिंग जो करते हैं उससे मेटल्स हमारे रस्ट नहीं होते, इसका नाम बैरियर प्रोटेक्शन होता है। दूसरा आता है सैक्रिफिशियल प्रिपरेशन मेथड। इसके अंदर मेथड इन्वॉल्विंग कोटिंग और मोर रिएक्टिव मेटल को एक लेस रिएक्टिव मेटल के पास लाते हैं, तो उससे उसका प्रिवेंट हो जाता है कि वो जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो ऑक्सीडेट पहले होता है, लेस वाला हमारा बाद में होता है। हमारा जो मेटल होता है ये बच जाता है। इसको हम जैसे एग्जांपल गैल्वेनाइजेशन में भी यही होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, हम वैसे ही इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं तो हमारी बच जाते हैं मेटल। एग्जांपल पढ़ लेना इसका। यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। These solutions are alkaline solution of chromate and phosphate which decreases the concentration of H positive ions and hence controls rusting. बस